Good morning, friends, and welcome to Trans India Real People, Real Emotions. This is our first episode of 2022, and what a way to start the new year with an interview that is unparalleled. But first, let me wish all our viewers a very happy new year, and we hope and pray that 2022 remains a healthy one and a prosperous one for everyone. दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी जिंदगी रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को न्योछावर कर दी है। ये शख्स अपने घर पर कम और हाईवेज पर चेक पोस्ट पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये वो शख्स है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मीटिंग में ले आए, और यही नहीं, और जब राष्ट्रपति जी ने इनकी कहानी सुनी तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, ये शख्स रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए एक रोल मॉडल है। हम बात करेंगे इस शख्स से, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस ऑफ दिस वीक followed by a very short break. Don't go anywhere and keep watching Trans India Real People, Real Emotions. Bharat-Benz inaugurates new dealership in Jammu and Kashmir. DFDS extends its record order with another 25 electric trucks from Volvo. Omicron may disrupt supply chain, hamper prospects of passenger vehicle segment, says FADA. Ashok Leyland launches AVTR high horsepower tippers. Indian auto component industry grows 65% to rupees 1.96 lakh crore in the first half of 2021-22. Ashok Leyland launches dual tire lift axle truck DTLA AVTR 3120, becoming the first manufacturer to have full range of DTLA trucks. Daimler India Commercial Vehicles celebrates all-time high exports, surpasses pre-COVID levels with record-breaking exports. Road Ministry launches navigation app that sends road safety alerts to drivers. Western Dedicated Freight Corridor sets completion target of December 2022. याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है, डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7, जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। Welcome back, friends. You're watching Trans India Real People, Real Emotions. This is our first episode of 2022. And let us start off with some good news. As we have been saying for the last few months, the road transport industry seems to be getting back on the track to recovery. Commercial vehicle sales have been going up, and so have the e-way bill numbers, GST collections and toll collections. It is very important for the road transport industry and the transporters that their trucks always remain on the road. A truck that does not move is a loss to the transporter or the trucker. And to make sure that these trucks remain on the road at all times, commercial vehicle manufacturers keep expanding their service network. This is not an easy task, as it requires a lot of finance as well as manpower. OEMs have been trying to reach out to all corners of the country to make sure that trucks keep moving always and they get the best service whenever and wherever required. Expanding its footprint in the northern region, Daimler India Commercial Vehicles, in association with PAL Trucking, inaugurated the new Bharat-Benz dealership in Jammu. The opening of the new touchpoint in Jammu, a growing construction hub, reflects the increasing demand for Bharat-Benz products in the union territories of Jammu, Kashmir and Ladakh. Speaking on the inauguration, Mr. Rajaram Krishnamurthy, Vice President of Marketing, Sales and Customer Service DICV, said, with the recent infrastructure boost in Jammu and Kashmir and Ladakh, there is a massive influx of construction projects being undertaken. We thereby anticipate a strong demand of commercial vehicles in the upcoming months for these regions.
Capitalizing on this opportunity, we aim to ensure 100% presence in the region and add our touchpoints to have a total of 7 service centers in the Union Territory. It is not just dealerships, but it is also truck models that are making entry into the commercial vehicle segment. OEMs are coming up with newer models, newer variants that aim to address each and every segment of the road transport industry. Earlier last week, Ashok Leyland launched the robust new AVTR tipper models with high horsepower AVTR 2832 and AVTR 3532. Powered by the 8-liter A6 series engines with iGen 6 technology, these trucks generate 320 horsepower and deliver 1200 Newton meters of torque. The globally benchmarked A6 engines are indigenously designed and developed by Ashok Leyland to offer excellent torque, incredible acceleration, pulling power and unmatched fuel efficiency. Speaking on the occasion, Sanjeev Kumar, Head MNHCV Sales and Network Ashok Leyland said, the launch of the high horsepower tippers AVTR 2832 and AVTR 3532 are significant in this geography. Hyderabad city and its adjacent regions have progressive, booming industries such as mining, horticulture and agriculture that fuel the demand for these innovative trucks. The new range has been built with a focus on higher productivity, increased fuel efficiency, improved long-haul commutes with better ground clearance in difficult terrains, in-house design hydraulic system to reduce the maintenance time, and will deliver overall on a lower total cost of ownership. As vehicle sales keep growing, not just in the commercial vehicle segment but also in the passenger car and various other segments, and also exports. The other segment that has been reporting very good numbers is the auto component segment. Automotive Component Manufacturers Association of India, or ACMA as it is called, announced the findings of the industry performance review for the first half of fiscal 21-22. The turnover of the automotive component industry stood at rupees 1.96 lakh crore or $26.6 billion for the period April 21 to September 21, registering a growth of 65% over the first half of the previous year. Commenting on the performance of the auto component sector in India, Vinny Mehta, Director General ACMA, said, despite the slow offtake in vehicle sales due to supply side issues, especially in the first quarter, the auto component industry demonstrated a remarkable turnaround in the first half of financial year 21-22, with significant growth in all segments, supply to OEMs, exports, as also the aftermarket. The component industry grew to rupees 1.96 lakh crore, registering 65% growth. Exports grew by 76% to rupees 68.7 lakh crore, while imports grew by 71% to rupees 64.3 lakh crore, leading to trade surplus of USD 600 million. The aftermarket, estimated at rupees 38,895 crore, also witnessed a steady growth of 25%. Component sales to OEMs in the domestic market grew by 76% to rupees 1.53 lakh crore. Sharing his insights on the performance of the component industry, Mr. Sanjay Kapoor, President ACMA, said, despite resurgence of demand for vehicles, supply-side issues of availability of semiconductors, increasing input costs, rising logistics costs and availability of containers, among others, continue to hamper recovery in the automotive sector. The auto component industry in this backdrop displayed remarkable resilience, increased value addition to meet regulatory compliance, fast recovery in external markets, and traction in the domestic aftermarket have contributed to the growth of this sector in the first half of 21-22. Meanwhile, Ashok Leyland has been busy launching new models to cater to various segments and various industries. In another development, Ashok Leyland launched the 3-axle 6x2 dual-tire lift-axle DTLA truck AVTR 3120. With the launch of AVTR 3120, Ashok Leyland becomes the first and only player in the country to have a full range of dual-tire lift-axle truck range with 31-ton, 40.5-ton and 47.5-ton GVW nodes. This new product will operate at 31-ton with a lift axle down and take more load than conventional 6x2 trucks, and at 18.5-ton with a lift axle up, lower fuel and operating costs similar to 4x2 during light load, partial load, return empty. This new product thus offers an excellent operational flexibility to customers to choose the option based on their load, offering best-in-class total cost of operation benefits. Speaking on the occasion, Mr. Sanjay Saraswat, Head MNHCV Ashok Leyland, said, today we have launched under our AVTR platform umbrella an innovative product, the AVTR 3120 with dual-tire lift axle.
With this, we become the only OEM having this customer-centric and fuel-saving DLTA technology for the entire range. True to our promise of Aapki Jeet, Hamari Jeet, we have launched the AVTR 3120 to plug the gaps in the dual-tire lift axle portfolio. At the same time, domestic market and products for the domestic market are not just things that are keeping the commercial vehicle manufacturers busy. Exports is another region where the OEMs have been focusing in a big way, and they're recording some very good numbers as well. For example, Daimler India Commercial Vehicles has set another record by exporting over 9,000 commercial vehicles since the beginning of 2021. With this, the company crosses new milestones, including 45,000 vehicles, 9,000 CKD kits, and 200 million parts exported. Daimler India Commercial Vehicle is the only Daimler truck location worldwide that produces engines, transmissions, trucks and buses at the same site under 4 brands: Bharat-Benz, Fuso, Mercedes-Benz and Freightliner. Mr. Satyakam Arya, Managing Director and CEO Daimler India Commercial Vehicle, said, "It is a momentous occasion for us at DICV and a great testimony to the trust our customers worldwide have in our locally made products. Despite the ongoing challenges presented by the pandemic and its effect on logistics, we continue to foster a global presence with exports of made in India products." While India has been exporting trucks and of course passenger cars across the globe, there is also a market for electric trucks in many countries. And one of the companies that has been catering to this growing demand, Volvo Trucks, has received an order for an additional 25 heavy electric trucks from DFDS, Northern Europe's largest shipping and logistics company. The new vehicles are on top of the record order of 100 Volvo FM electric trucks that was made in October, adding to a total of 125 electric trucks for DFDS. Roger Arm, President Volvo Trucks, said, "Once again, DFDS has confirmed its great trust in our partnership and technology with this order for an additional 25 Volvo FM electric trucks. We are very proud and happy that it is so clearly becoming a competitive advantage for transporters to be able to offer electric sustainable transports. This is very encouraging for Volvo Trucks, for our customers and for the climate." While truck sales have been growing not just in India but in other parts of the world, there is concern in India about the growth in sales of passenger vehicles. The new Omicron variant has been causing some cause of concern amongst the industry. Not just the transport industry, but other industries too are keeping a close eye on the developments, especially the new lockdown norms that are being enforced by some states. Automotive dealer body Federation of Automobile Dealers Association, or FADA as we know it, warned that an increase in the number of Omicron cases might cause supply chain disruption in the passenger vehicle segment, adding that 2022 could be a neutral year. FADA President Mr. Vinkesh Gulati in a statement said, "We see year 2022 as a neutral year as the rise of Omicron has once again created fear globally. This may further impact the supply in passenger vehicles if chip-making countries go under lockdown or prioritize chip-making for electronics used for work from home." With growth in the automobile segment also comes the question of safety. Governments across the globe have been focusing on road safety, and the government of India is not far behind. There have been many initiatives taken by the Government of India and Ministry of Road Transport and Highways that aim to reduce accidents. In the most recent development, MORTH has collaborated with IIT Madras and digital tech company MapMyIndia to sign a pact for driver and road safety technologies in the country. The three parties jointly launched a free-to-use navigation app for citizens. The navigation app service provides voice and visual alerts to drivers about upcoming accident-prone zones, speed breakers, sharp curves and potholes, among other hazards. The initiative is part of the Road Transport Ministry's vision to minimize accidents and fatalities that occur due to road accidents in the country. For a long time now, road transport has been the most preferred mode of transport for cargo movement across the country. However, the government has been keen to develop railways, and the one huge project that aims to take away a major chunk of business from road transport is a dedicated freight corridor. And if all goes according to plan, the Western Dedicated Freight Corridor project will be completed by December 2022, which will not only decongest the existing Indian rail network, but will also help the national transporter free up the current tracks to run additional passenger trains on the current Mumbai-Delhi routes. Over 99% of the land acquisition is complete for this project that will cover 5 states of the country, including Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Uttar Pradesh.
The Western Dedicated Freight Corridor will cover a distance of 1,506 kilometers of double-lane electric track from JNPT to Dadri, passing through Vadodara, Ahmedabad, Palanpur, Phulera and Rewari. It will run parallel to an existing line through Narnaul and Ringas. The other important stations will be Phulera and Marwar Junction in Rajasthan, Palanpur Amli Road in Sabarmati, Makarpura in Vadodara, Gokandgam, Kosad in Gujarat and Vasai Road in Maharashtra before it terminates at JNPT in Maharashtra's Raigad district. A dedicated freight corridor will separate freight and passenger traffic to increase the speed of freight movement. Western Dedicated Freight Corridor will be used to transport fertilizers, food grains, salt, coal, iron, cement and steel. So friends, as railways gears up to challenge road transport, there is no doubt that road transport will continue to be the most preferred mode of transport for cargo movement. जैसे हम आपको बता रहे थे, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को शायद अपना धर्म माना है, अपना परिवार माना है। हम बात कर रहे हैं AIMTC के फॉर्मर प्रेसिडेंट और सिमटा के जनरल सेक्रेटरी R षणमुगप्पा के बारे में, जिसे लोग GRS भी कहते हैं और गुरुजी भी कहते हैं। दोस्तों, आप आधी रात को भी GRS को फ़ोन करें कि मेरा ट्रक यहाँ पर अटक गया है या कुछ ऑफिशियल्स मुझे हैरेस कर रहे हैं, GRS या उनकी टीम या जिसे मैं कहूँगा GRS की जो आर्मी है वो ट्रकर के मदद के लिए पहुँच जाती है। और ये रोज़ होता है, ऐसे नहीं कि कोई आइसोलेटेड केसेस हैं। दिस हैपन्स एवरी डे। GRS वो शख्स है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी को अपने कोरोनेशन सेरेमनी पर बुलाया। मुझे आज भी याद है बेंगलोर का वो मंजर जहां पर हज़ारों ट्रांसपोर्टर्स मौजूद थे और पहली बार द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केम टू अ मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ही लिसन्ड टू आवर प्रॉब्लम्स एंड सेड दिस इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री, वी कैन नॉट इग्नोर इट। उन्होंने GRS के लिए कहा कि ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है, लेकिन GRS को इंटरव्यू करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप एक सवाल पूछेंगे लेकिन GRS को इंटरव्यू करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप GRS से एक सवाल पूछेंगे वो आपको अगले 10 सवालों का जवाब दे देंगे। तो दोस्तों, ये आज का जो एपिसोड है, रादर GRS का जो इंटरव्यू है, ये एक इंटरव्यू की जगह पर एक मोनोलॉग होगा। GRS spoke on a lot of issues, right from टोल टैक्स, जिसके लिए GRS कब से लड़ते आ रहे हैं। उनका एक ही सपना है कि मुझे इस देश से टोल टैक्स हटाना है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए। बचत होनी चाहिए तो ट्रकर्स के टाइम की, ट्रकर्स के फ्यूल की और ट्रकर्स के हैरेसमेंट की। GRS वो कड़ी है जिन्होंने साउथ जोन को साथ में बांध कर रखा है। हज़ारों एसोसिएशंस है साउथ इंडिया में ही, लेकिन सब सिमटा के बैनर के अंडर काम कर रहे हैं। दोस्तों, वी विल नॉट ड्वेल मोर इनटू GRS, क्योंकि उनकी अगर हम तारीफ करने बैठे शायद पूरा दिन निकल जाएगा। सो लेट अस हियर what GRS has to say about his journey, the road transport industry and what the future holds for the road transport industry. Here's talking to GRS or Guruji right after this very short break. Stay tuned and keep watching Trans India, real people, real emotions. याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है, डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7, जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। Welcome back friends to Trans India. In our interaction segment today, we have a very special guest. We shall be featuring part 1 of our interaction today. Here's talking to GRS और गुरुजी। 1960 में ये स्टार्ट किया। CM रेड्डी साहब जाके
50-50 रुपया कलेक्ट करके मेंबरशिप बना के एक 100 मेंबर में स्टार्ट किया। आज 5000 मेंबरशिप है यहाँ। रेंट बिल्डिंग में स्टार्ट किया वो टाइम में। अभी 23 ब्रांचेस है, फिर भी 3 स्टॉक पॉइंट है। पर डे हमारा सेल 30 lakhs, 110 crore सेल होता है पर ईयर। वी आर हाईएस्ट सेल इन कैस्ट्रॉल इन इंडिया। रिटेल में 1200 KL सेल करता है, ओनली कैस्ट्रॉल। 60 ईयर्स से ओनली 1 ब्रांड कैस्ट्रॉल ओनली, दूसरा मटेरियल कोई भी नहीं रखा आज तक हम लोग। ऐसा ही वही सप्लाई टाटा होने दो, लैलैंड होने दो, ऐसा ही करने को टाइम में एक 10 साल पीछे ये टोयोटा कार्स हमारा ट्रकर बहुत ले लिया। इसी वास्ते मेजर अभी टोयोटा कार, इंडिगा, बाद में होंडा है, सब कार का स्पेयर पार्ट्स सेल करता है हम लोग। डायरेक्टली वही से सप्लाई करता है, तो आंकी पैंकी नहीं है इसमें। डुप्लीकेट मटेरियल कोई भी 0.01% भी नहीं रहेगा हमारे पास। कम से कम 160 आदमी इसके ऊपर काम कर रहा है। 12 बिल्डिंग हमारा ओन बिल्डिंग है। दिस प्रीमिसेस आल्सो और ओन बिल्डिंग। ऐसा ही मॉर्निंग सब ब्रांचेस से फ़ोन आएगा, ईच ब्रांच को एक एक मटेरियल दे के, एक व्हीकल 4 व्हीकल में एक एक डिलीवरी दे के फाइनली आएगा। ट्रकर को कभी मटेरियल्स इम्पॉर्टेंट है वो टाइम में मंगा कर दे देगा। सब सामान हमारा पास मिलता है। हमारा पास TVS वाला भी हमारा पास परचेस करता है, सब आदमी परचेस करता है। कहाँ ब्रांचेस में सब ये बॉश एजेंसी है वहाँ दिया, वो एजेंसी वाला सब आदमी हमारा पास मटेरियल परचेस करता है। एक प्रेसिडेंट है, एक 11 डायरेक्टर लोग हैं। हम अभी 10 साल से हम प्रेसिडेंट हैं। ऐसा ही हमारा काम शुरू करके जा रहा है। मेजर ट्रकर को हेल्प हो रहा है। कहाँ भी रात में व्हीकल डैमेज हो गया, उसके लिए सामान होना, सुबह सामान होना, कम से कम मॉर्निंग टू 7 बजे तक हमारा दुकान रहता है। इमरजेंसी रहे तो लेके जाके उसका पहुँचता है हमें। इसके लिए व्हीकलों का बहुत बढ़िया हेल्प हो रहा है, मेजर हेल्प हो रहा है इसी सामान से। व्हीकल ब्रांडेड भी वही देगा, रेट भी हमारा कम रहेगा। फाइनली ये 4% उसको बोनस भी देता है। इट इज़ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए ऐसा करके जा रहे हैं हम लोग। कम से कम 25 करोड़ मटेरियल हमारा पास स्टॉक है। ऐसा मटेरियल में ऐसा ही संभाल के आता है हम लोग। हमारा साथ में हमारा डायरेक्टर लोग सब में हमको मदद करता है। 5000 मेंबर को ऊपर हमारा सोसाइटी में मेंबर है। RC बुक रहे तो मेंबरशिप हो सकता है, ऑर्डिनरी आदमी मेंबरशिप नहीं हो सकता है। किसको ट्रक है, किसको ट्रक है वो मेंबर हो सकता है, दूसरा आदमी मेंबर हो सकता है। शेयर होल्डर है, मेंबरशिप मतलब 5000 उसको शेयर देगा, 500 शेयर देगा उसको। शेयर होल्डर में उसको ज्वाइन करता है। ट्रक रहे तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं ट्रक होने दो, बस होने दो, टेम्पो ट्रैवलर होने दो, कोई भी आदमी ये हमारा सोसाइटी में मटेरियल क्या है वो यूज़ करने वाला रहना पड़ेगा। 1 साल का एक दफ़ा सब आदमी लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको वोटिंग पावर नहीं मिलता है। आजकल ये ट्रक इंडस्ट्री में ट्रक नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, वो लोग आके क्या कष्ट है मालूम नहीं होता है। एक दफ़ा मेंबर हो गया तो 15 साल होने के बाद उसका ट्रक नहीं रहता, उसका आज का पोजीशन क्या भी मालूम नहीं होता है। इसके लिए हम लोग मेजर अभी ट्रक रहा तो मेंबरशिप हो सकता है। एक दफ़ा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस साथ में हम लोग यहाँ पर चला था। ये मदर बॉडी हमारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, अभी भी है, आज भी है, कल भी कभी भी है हमारा वो संस्था। साउथ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को हमारा व्हीकल जाने को टाइम में थोड़ा तकलीफ था, तकलीफ सुनने वाला बहुत कम था। कोई भी ट्रक वहाँ इंडिया में दूर में जाके फंस गया तो वो टाइम में हमको प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मिलता था। बाद में एक स्टेट में रूल करने के बाद दूसरा स्टेट में एक रूल रहता है। एक स्टेट में डीजल कम रहे तो एक स्टेट में ज़्यादा रहता है। इसके लिए साउथ जोन प्रिपेयर करना पड़ेगा। केशवराव जी था, गोपाल नायडू, हम बाद में सेंगोडन,
सुकुमार, युवराज, ऐसा हम सब आदमी मिल के ये साउथ जोन ऑलरेडी था, उसको पुनर्जन्म दिया 30 साल पीछे। पहले से था 30 ईयर से हम लोग सिमटा था। उसमें केशवराव जी था, वो होने के बाद गोपाल नायडू जी था, गोपाल नायडू होने के बाद इसको हम आ गया। 20 साल हो गया अब जनरल सेक्रेटरी होके, अभी 20 साल से हम जनरल सेक्रेटरी हैं। गोपाल नायडू जी प्रेसिडेंट है। तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, पांडिचेरी, सब स्टेट हमारा अंडर में है। हमारा अंडर में 39 पेट्रोल पंप्स है। कहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में हमारा औषध क्या है, कहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ भी तालुक में ट्रक फंस गया, विद इन 1 आवर के अंदर वो ट्रक का हमारा आदमी चले जाएगा वहाँ। किसको प्रॉब्लम होता है वहाँ इमीडिएटली जाएगा। कोई भी एक्सीडेंट होने दो, कोई भी भाड़ा नहीं दिया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, हमारा व्हीकल को चेन्नई में प्रॉब्लम आ गया, कर्नाटक का तमिलनाडु प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम तमिलनाडु का आंध्रा हो गया, ऐसा ये गवर्नमेंट साथ में है। गवर्नमेंट वाला मीटिंग करता है, ऑल द कमिश्नर 3 महीना एक दबा आके साउथ जोन कमिश्नर मीटिंग करता था। हम लोग क्यों नहीं करना, वो टाइम से हम लोग शुरू किया ये। इसलिए हमारा रेट कहाँ मिलता है, हमारा स्टेट में प्रॉब्लम क्या होता है, रेंट मिलने का क्या दिक्कत होता है। बाद में एक दफ़ा हम लोग ट्रक भर के बेच दिया, कोई भी एक ब्रोकर गलत कर दिया रहे तो उसको इमीडिएटली बायकॉट कर लेगा। ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ट्रकर को बीच में थोड़ा उसको है ऑर्गेनाइजेशन है कर को बार बार उसको थिंक होना पड़ेगा। क्यों, अभी ऑर्गेनाइजेशन गया तो हमको सक्सेस हो जाएगा। कोई भी मीटिंग अभी हो गया, देखो डे फॉर यस्टरडे असम में एक व्हीकल फंस गया, 2 मिनट में हम लोग रिलीज़ कर दिया उसको। ऐसा ही तमिलनाडु व्हीकल मेजर आता है कर्नाटक को, कर्नाटक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करके जाता है। इसलिए मेजर बेनिफिट मिल गया ट्रकर को। बाद में भाड़ा इतना कम देता सर, ये भाड़ा नहीं देता है, ये कंसेनी भाड़ा नहीं देता है, लोडिंग का प्रेशर क्रिएट करता है, ऐसा रहा तो बोल के हम लोग क्या है सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस क्या है हमारा यूनिटी है। हम लोग एवरी मंथ मीटिंग करता है, सिमटा मीटिंग एवरी 2 महीना करता है, एक दफ़ा 1 महीना का एक दफ़ा भी मीटिंग कर डालता है हम लोग। स्टेट का मीटिंग बार बार होता है, एवरी स्टेट में 2 महीना के एक दफ़ा, 1 महीना के एक दफ़ा मीटिंग 101% हम लोग कर रहा है। सब स्टेट वाला ऑर्गेनाइजर को बुलाएगा, डिस्ट्रिक्ट तालुक प्रेसिडेंट लोग को बैठ के बातचीत करके भेजेगा। आज क्या परिस्थिति हो गया, बहुत कोशिश करके हम ऊपर लेकर आया इसको। देखो अभी लोडिंग अनलोडिंग उसका माल इसका माल करके अनाउंस करके गया, करने के बाद उसके पीछे थोड़ा काम करने वाला कमज़ोर हो जाता है पूरा देश में। हम बहुत स्ट्रांग किया, एंटायर साउथ में बहुत स्ट्रांग किया। केरला में एक पैसा भी लोडिंग अनलोडिंग बंद हो गया, तमिलनाडु में स्टार्ट हो गया ऐसा ही, आंध्रा में बहुत कोशिश करके गोपाल नायडू ईश्वर राव बहुत कोशिश करके आ रहा है। ऐसा ही यहाँ हमारा कर्नाटक में लोडिंग अनलोडिंग नील कर दिया मेजर प्लेसेस में। बाद में कोई भी तकलीफ रहा तो हम लोग डायरेक्टली जाके लोडिंग अनलोडिंग मतलब क्या है, लोडिंग अनलोडिंग लेता करके बोला तो वो ब्राइब है, इसी बताया हमें पुलिस को। हम जाके कंप्लेंट दिया, अभी ये लोडिंग मामूल पूछ रहा है, ये ब्राइब पूछ रहा है करके। आज उसको फिर पंचनामा हो के उसको पुलिस स्टेशन से चिट्ठी भेजा, FIR डाला उसको एक कंटेनर के ऊपर। बहुत बड़ा शुगर मिल बंद कर दिया, ऑलमोस्ट 90%। सीमेंट फैक्ट्री में कहाँ भी बंद कर दिया। एक गुड्स बुकिंग में थोड़ा वहाँ है, वो भी अभी कर्नाटक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का पास बात कर दिया। अभी आगे सब जगह मेजर बंद करके आ रहा है। साथ ही साथ हम लोग बार बार बोलता है हम गवर्नमेंट का ऊपर डिपेंड नहीं होने का है कभी भी। डीजल प्राइस ज़्यादा होता है, इतना विरोध पर से एक्सचेंज करता है, सरकार चलाना रहे तो उसको भी पैसा चाहिए, हम गलत नहीं बोलता है। फिर हम लोग हमारा स्टैंड क्या है, हमारा गलत क्या है, हम रेक्टिफाई कैसा ये व्यापार को कर सकता है, ये सब्जेक्ट थीम रखा था। हम लोग यही डिसीजन था हमारा माइंड में बहुत दिन से। देखो हमारा को लोडिंग अनलोडिंग 2000-3000 हो जाता है, एप्पल अनलोडिंग 10,000 हो जाता है। इसको बंद कर दिया तो मेजर 3000 एक ट्रिप में बस गया तो हमको चेन्नई टू बेंगलोर लोडिंग अनलोडिंग 3000 आता है, केरला बेंगलोर 6000 आता है। 6000 बंद हो गया, अभी हमारा बड़ा हमको मिल जाता है, लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दिया।
बेनिफिट कैसा ट्रकर को है, हम रात दिन थिंक करना पड़ेगा। संस्था में आके आराम से बैठ के जाने वाला कोई संस्था सीट नहीं है पर्टिकुलरली, इसलिए हम लोग सीरियसली उसके ऊपर स्ट्रांग वर्क करना पड़ेगा। बात ही बात दोस्तों, हम GRS के साथ अपनी बातें जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए और देखते रहिए ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है, डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7, जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। ये हार्बर में एक सैंपल बजाता है। मैंगलोर हार्बर में 30 टन 40 टन एक ट्रक में लोड होता था। वो टाइम में हम लोग गया मैंगलोर में, बड़ा इंक्रीज करने का रेट, फिक्सेशन ऑफ रेट करने के लिए गया। हम लोग गया था, बात किया उसका पास, एक ही दिन में लोड ओवरलोड बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, हाई कोर्ट जजमेंट है, इसमें प्रॉब्लम क्या है ओवरलोड बंद करने के लिए? रोड डैमेज के ऊपर वो केस डाल सकता है हमारे ऊपर। सेक्शन 199 में अभी अनलडी कंटेनर के ऊपर ये इंसिस्ट करना पड़ेगा, पेनाल्टी उसको डालना पड़ेगा। ये बोलने के बाद मैंगलोर में बंद कर दिया पिछले महीना 7 तारीख को। वहाँ सुनील ये सब है, बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन रखा था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग रहा तो सक्सेस हो जाता है पूरा देश में। ऐसा ही किया था हम लोग वहाँ। अभी 900 ट्रक लोड हो जाता था डेली, 30 टन 40 टन लोड होता था। कम से कम 30,000 टन 27,000 to 30,000 टन पर डे लिफ्ट होता था 900 ट्रक में। बाद में हम लोग रुकने का बाद रुक के अभी 20 डेज हो गया। वो टाइम में 1000 रेट था बल्लारी, एक सेक्टर को बोलता है 1000 रुपया था, अभी 1450 दे रहा है। 450 रुपीज़ पर टन इंक्रीज हो गया। ओवरलोड 30 टन से 21 टन आ गया, 20 टन लोड कर रहा है करेक्ट लोड। उसमें भाड़ा भी बढ़ गया हमको, इसके लिए बहुत ट्रकर खुशी है। ऐसा ही वॉस्पेट में माइंस चलाने के टाइम में बहुत ओवरलोड जाता था, 20 टन 25 टन, उसमें बहुत ड्राइवर तकलीफ था, ट्रक को बहुत बड़ा तकलीफ था। हम लोग अभी उसका सिस्टम कर दिया, 6 चक्का गाड़ी में 10 टन लोड कर सकता है बस, इसको पीछे 16 टन 17 टन 20 टन कर डालता था। अभी कुछ भी नहीं है, मॉर्निंग आता है 2 ट्रिप मारता है, आराम से चले जाता है। मेन मुद्दा हम लोग क्यों कोशिश नहीं कर रहा? पॉइंट नंबर 1 लोडिंग अनलोडिंग, पॉइंट नंबर 2 ओवर डायमेंशन एंड ओवर लोडिंग। शिवकाशी से 4000 बंडल जाता था, इसको पीछे 1,10,000 5,000 मिलता था दिल्ली। अभी रिस्ट्रिक्शन करके 2,700 बंडल लोड होता है, 3,000 बंडल तक 1,000 कम हो गया। भाड़ा तो अभी बढ़ गया, 1,25,000 बढ़ गया शिवकाशी से दिल्ली। देख लिए, इसके लिए हम लोग इसी सिस्टम में लगाना, ओवरलोड ओवर डायमेंशन, फिक्सेशन ऑफ रेट, लोडिंग एंड अनलोडिंग। इसमें कम से कम 10,000 तक हमको बच जाएगा। आगे ज़िंदगी में हम बहुत कुछ काम किया, ये बोलने का नहीं, ये टीम वर्क है। करने के टाइम में मैंगलोर में हो गया, गुलबर्गा में हो गया, 6 डिस्ट्रिक्ट में अभी इम्प्लीमेंट में हो गया। ये महीना में 6 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है। ओवरलोड बंद है, फिक्सेशन ऑफ रेट है, मॉर्निंग अनाउंस करेगा रेट। मैसूर में एक दिन का 150 ट्रक लोड होता है, मॉर्निंग लिस्ट फिक्स कर दिया, 3 साल के लिए अग्रीमेंट कर दिया ट्रांसपोर्टर का पास, हमारा एसोसिएशन में गाड़ी जाएगा, ये रेट में जाएगा, फिक्स कर दिया सब जगह को। ट्रकर को मालूम है क्या रेट है, ट्रांसपोर्टर को मालूम है क्या रेट है। बीच में ये ब्रोकर लोग 1,000 2,000 3,000 5,000 क्रॉसिंग रखता था, सब नहीं, थोड़ा 10% आदमी ऐसा करता था, इसलिए रुक दिया वो। हम लोग मोबाइल नंबर डालता है, भाड़ा क्या डालता है, ये ट्रक मैसूर से कहाँ लोड होगा डालता है, शाम को सब देख सकता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह में देख सकता है, हमारा पूरा इंडिया में देख सकता है, ज़रूरत पड़ा तो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इसलिए हम लोग, हमको कैसा सेव करना,
हम कैसा सेव करना, हमारे को हम कैसा सेव करना, ये मुद्दा रखना पड़ेगा आगे। भाड़ा कम में कौन बेचता है? ट्रांसपोर्टर कुछ भी आपको भाड़ा कम करो कर को नहीं बोलता है। कंसेनी भी ट्रांसपोर्टर को भाड़ा कम में जाओ कर को नहीं बोलता है। ये लोग कॉम्पिटिशन में जाके फंस जाता है वहाँ, इसलिए होता ना, नहीं रहते ये क्यों होता है? इसलिए मिस्टेक मेजर ब्लेम हमारा काम है, हमारा गलत है, गवर्नमेंट का गलत नहीं है। बार बार गवर्नमेंट के ऊपर जाने का, लड़ने का नहीं है। कॉन्क्रीट सब्जेक्ट के ऊपर जाके लड़ा तो वो क्या तो भी पूछ सकता है। हम लोग, हमारा सेक्टर कैसा है? 2,22,000 करोड़ टू 25,000 करोड़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस में लोन लेके हम लोग व्यापार करता है। ओनली 12,000 करोड़ से 20,000 करोड़ ओनली ट्रक के लिए बोलता है। हम लोग कर्ज लिया बैंक में, ओनली 20,000 करोड़ कर्ज लिया। 2,22,000 25,000 तक हम लोग नॉन बैंकिंग में फाइनेंस करके लोन लिया। हमारा खुद का पैसा, कल क्या तो भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारा खुद का हमको लेके जाके हमारा घर लेके जाता फाइनेंशियर। इसलिए इतना काम हम करने को टाइम में सरकार हमको पीछे कुछ भी नहीं देखता है। स्टेक होल्डर को पूछ के सरकार बात नहीं करता, ये बहुत बड़ा गलत है। एटलीस्ट हमारा प्रॉब्लम क्या है वो इजी सॉल्व कर सकता है। हमको रेवेन्यू लॉस में आप काम मत करो। मेजर प्रॉब्लम है ये जीएसटी में, थोड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग का जीएसटी संबंध कैसा आता है? हम कौन है? हमारा ट्रकर है। आप नोटिस हमको ऊपर क्यों इश्यू करता है? गलत हो गया, कंसेनी के ऊपर करो। ट्रकर का क्या मसला आता है? हमारा ड्राइवर अनएजुकेटेड है, वो लोग को क्या मालूम होता है? बिल्टी के बारे में क्या होता है मालूम होता है? नहीं मालूम होता है। चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट में रुक के जाता था। अभी यहाँ से बॉम्बे गया हमारा गाड़ी लास्ट वीक में, पूना में रुक गया, मटेरियल नहीं मिला, बारिश आ गया, फ्लड आ गया, 4 दिन वहाँ रुक गया। बाद में जाने तो जीएसटी वाला 3 लाख पेनाल्टी डाल दिया। साहब हमारा फ्लड आ गया, नहीं वो नहीं सुनता है, 3 लाख भर के जाओ। ये तो सरकार थोड़ा इसको सबको डिस्कशन करना पड़ेगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी कमज़ोर है, ये लोग जाके डिस्कशन करना पड़ेगा। सरकार बहुत मांग लिया, आपको याद है 10-15 साल पीछे, 11 साल पीछे हम ये नेशनल परमिट 36 टाइम गया दिल्ली। हम इतना फाइट किया बोल नहीं सकता है, फाइट करके ये नेशनल परमिट ले गया। फर्स्ट टाइम ये ब्रह्मदत्ता ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जाके, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को मिलता था। हम जाके मिनिस्टर साथ में फ़ोटो खींचने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ता था। वो टाइम में हम ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के पास काम करता था। वो भी सेक्रेटरी लोग बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है, इसमें गलत नहीं वाला। गवर्नमेंट कमज़ोर, हमारा प्रॉब्लम हमारा है, आज भी बोलता है। प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट का है, ऑर्गेनाइजेशन करने वाला का प्रॉब्लम है, सरकार का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हम लोग जाके देखना पड़ेगा, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा देना पड़ेगा। 36 टाइम कया ये नेशनल परमिट के लिए, ये ऑर्डिनरी सब्जेक्ट है, फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप नहीं करता है हम लोग, यही प्रॉब्लम है। डिमॉनिस्ट्रेशन टाइम में सरकार को निवेदन रखो तो पूछने वाला देना ना। बेबी रोया तो माँ दूध देता है, नहीं रोता कहाँ से देगा? जाके पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हमारा प्रॉब्लम क्या बताना पड़ेगा सरकार को। सरकार को खुद मालूम हो जाता है। डिमॉनिस्ट्रेशन टाइम में किया, वो दिन अनाउंस किया 15 दिन टोल मत कलेक्ट करना करके, हम लोग जाके प्रेशर करना था 3 महीना 4 महीना हमको बेनिफिट देना। बाद में ये नेशनल परमिट एंटायर कंट्री में हम लोग 1 साल नहीं भरेगा करके इंसिस्ट करना था उसको, स्टेट टैक्स इंसिस्ट करना था, उसका हाथ में सब। 1 साल वो दिया ना, एक्सटेंशन दिया, यही उसको वे ऑफ करो करके पूछने का हमको आदमी कौन है? ये कोई भी रोने वाला नहीं है, वो दूध देने वाला नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट का पास स्टेक होल्डर लोग जाके, हम लोग बहुत बड़ा मेजर स्टेक होल्डर है पूरा देश में। हमारा परिवार इतना संस्था, इतना बड़ा संस्था है, कोई भी फार्मर स्ट्राइक करने दो, कोई भी स्ट्राइक करने दो, हम स्ट्राइक एक ही मुद्दा नहीं है हमारा। हम लोग जाके मिलना पड़ेगा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा मिलना पड़ेगा, वो भी रेडी है। देखो आज कैसा है, 1 साल वो दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया, उसको क्या मालूम नहीं है प्रॉब्लम हमारा। एक दिन का हमारा प्रॉब्लम मालूम है, पूछने वाला नहीं है उसको सरकार को जाके।
चिट्ठी लिख दिया तो वो डालेगा, कैसा हो सकता है? आप क्यों भागता है कन्याकुमारी टू कश्मीर तक आपका टीवी लेके क्यों भागता है? ये सब्जेक्ट आप लोग ब्राइब करके ये सब आदमी को ये दिखाया तो वो अच्छा होएगा, बाद में सबको मालूम होना पड़ेगा करके आपको पीछे हम लोग आना पड़ेगा। आप हमारा पीछे आता है, हम आप पीछे आना पड़ेगा। सरकार का पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है, डीजल कम करो, डीजल कम करो, सिस्टम बनाना, डीजल हमको 6 महीना का एक दफ़ा हाइक करो, एटलीस्ट 3 महीना एक दफ़ा हाइक करो, प्रॉब्लम सॉल्व होता है। स्टेट को स्टेट का एक ही डीजल प्राइस कर दो, हो सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट किया, ये स्टेट वाला बार बार क्यों टैक्स ज़्यादा करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछना पड़ेगा इसको, इसका कंट्रोल में है। ये दारू, ये डीजल, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, क्यों? गलत यही है। Friends, we will continue our conversation with GRS next week. Until then, stay safe, stay healthy, and keep watching Trans India. And before you go, don't forget to subscribe to the channel. Jai Hind.